हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किए थे चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स, तो उसी को आज हमने कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए। एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर in the eastward direction at a constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of Earth's magnetic field is this. Okay, find the EMF that develops between the tips of the wings. तो basically they're asking about the induced EMF, जो भी हमारा EMF बनेगा। तो whatever is given to us, just write that part। तो हमें length दे रखा है which is 40 meter. Then we are given the speed which is 1080 kilometer per hour. तो I will just convert it into meter per second. तो meter per second में convert करने के लिए I will just multiply it by what 5/18। तो जब आप सब कुछ cancel out करके देखोगे तो you will get it to be 300 meter per second. Okay. Then what else is given to us? Magnetic field, जो उस region में magnetic field है, that is 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Find the EMF that develops between the tips of the wings. So we need to find out the EMF. तो EMF is given by BVL, right? तो बस values को put कर देते हैं, and that is 1.75 into 10 to the power minus 5. Then speed is 300 and then length is 40 meter. तो just calculate it, 1.75 और इधर मेरे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पे मैं 10 to the power ये 3 zeros हैं, इधर -5 है, तो I can just write 10 to the power -2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get it to be around 0.21 volt, like that. Okay. Chalo, let's move on to the next question, which is a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second. Okay, so 50 revolution per second हमें frequency जो है वो दे रखी है, that is 50 RPS, 50 revolution per second, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter, about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? So the situation looks like this. तो इस तरह से कुछ situation है कि हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका एक एंड जो है दैट इज़ फिक्स्ड एट द सेंटर। देन यहाँ से हम उसको ऐसे मूव करा रहे हैं। तो लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम पी से क्यू चले गए। तो ऐसे केसेस के लिए हमने देखा है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला हम निकालते थे दैट वाज सिंपली हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। बी एल स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है, लेंथ ऑफ द रॉड ही है वो, तो हम हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हैं। बट हमें एक और चीज़ पता है क्या, कि ओमेगा जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वॉट, नथिंग बट 2 पाई न्यू के बराबर। तो 2 से 2 विल जस्ट गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट पाई बी आर स्क्वायर न्यू। ये हो जाएगा क्या, हमारा EMF। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो पाई का वैल्यू हम डाल देंगे 3.14। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखा है, रेडियस इज़ ऑल्सो 1 मीटर। तो बस, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी न्यू लिख लो या फिर आप F लिख लो, इट इज़ 1 एंड द सेम थिंग। तो बस आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल जस्ट पुट 50 हियर। तो बस आपके पास वैल्यू जो है दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 157.1 वोल्ट, लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से हम इसको कर लेंगे। Now look at the next question, which is an average induced EMF of 0.4 volt appears in a coil when current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in the opposite direction in 0.4 second. Find the coefficient of self-induction of the coil. तो अगर आप यहाँ पे देखें हमने करना क्या है, तो अगर आप करंट की वैल्यू को देखें तो इफ़ इट वाज गोइंग
from 10 ampere in one direction, then it goes from 10 ampere to another direction. तो for that अगर हम change in current निकालेंगे तो other direction के लिए, opposite direction के लिए I'll just write -10, minus जो भी मेरा initial था that was -10 obviously, तो -20 ampere हो जाएगा ये. and then time जो है ये सब कितने टाइम में हो रहा है, 0.4 सेकेंड में हो रहा है. और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो we had the formula E is equal to -L di/dt, जहाँ से मुझे L का वैल्यू निकालना है तो दैट विल बी सिंपली -E इंटू dt अपॉन di और -0.4, और बस आप वैल्यू को पुट करोगे तो dt इज़ 0.4 ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद di इज़ -20. तो बस कुछ इस तरह से हमने डालना है, तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और फिर यहाँ पे हम L का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे देख लेंगे कि इट विल बी अराउंड 8 इंटू 10⁻³ हेनरी, लाइक दैट, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर. ओके, whatever is given to us हम साथ साथ लिखते जाएंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर and total number of turns 800 is connected to a source that supplies current changing at the rate of 0.2 ampere per second. मतलब कि हमें di/dt दे दिया है 0.2 ampere per second. What is the EMF induced across the solenoid? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो the formula was E is equal to L di/dt like this. और अगर मैं L का फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं सेल्फ इंडक्टेंस का, तो यहाँ पे हमें जो सारी चीज़ें दे रखी हैं उनको यूज़ करते हुए तो फॉर्मूला वाज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L, दैट वाज μ0n² A/L, और साथ ही साथ है हमारा di/dt. तो बस अब कुछ नहीं करना है, वी नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज़. तो μ0 इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷. नंबर ऑफ टर्न्स 800 हैं. ओके, देन एरिया जो है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली. देन L का वैल्यू इज़ 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10⁻², एंड di/dt इज़ 0.2. तो बस कुछ इस तरह से कर लेंगे एंड आप बस इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के आप मुझे बताओगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ फाइंड द चेंज इन करंट इन एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी. तो इंडक्टेंस हमें दे दिया है 10 हेनरी, इन विच द EMF इंड्यूस्ड इज़ 300 वोल्ट in 10⁻⁻² second. Also find the change in magnetic flux. तो if I remind you, तो अगर मुझे change in current निकालना है तो E is equal to L di/dt होता है. Talking about the magnitude part, तो EMF is 300, L is 10, di हमें निकालना है and dt is 10⁻⁻². तो अगर आप यहाँ देखोगे तो di will be this will get cancelled and there will be 30 into 10⁻⁻², which is 0.3 ampere will be the change in current. Now also find the change in magnetic flux. तो हमें ये भी तो पता है ना, E is equal to d∅/dt होता है. तो d∅ अगर हमें निकालना है तो दिस इज सिंपली E dt. तो ये हो जाएगा हमारा 300 एंड टाइम है हमारा 10⁻⁻². तो दैट विल बी सिंपली 3 Weber. तो दैट विल बी द चेंज इन फ्लक्स. ओके, सो इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. वी आर डूइंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर द प्रैक्टिस. चलिए, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.